Today we are going to see D and F block elements. Each and every line from NCERT is going to be covered, and we are going to see the important points which are related to it. First, in the introductory paragraph, they have given that iron, copper and silver along with that gold, they are playing important role in human civilization development. Okay, these four examples are given. After that, inner transition elements such as thorium, Pa, okay, and uranium, they are proving excellent source of nuclear energy in modern time. This is proactinium, this is thorium, and this is uranium. So about nuclear energy, these three examples are given. Later on, in the first paragraph of the NCERT, they have shown us that D block which is there, it includes group 3 to 12. Okay, they are filled in the D orbitals. Okay, they are progressively filled in each of the four long periods. The elements constituting F block are those in which the 4f and 5f orbital are progressively filled. So basically we have seen that in the periodic table, this is the S block, this is the D block, and here there is the P block, and the lowermost, this is the F block. So they are speaking only about the D block, which includes groups 3 to 12. Okay, so if it starts from 3 here, it ends to 12 here. And in F block there is 4f and 5f orbitals which are filled. Okay, then these elements are formal members of group 3, from which they have been taken out to form a separate F block of the periodic table. So we would see that group 3 means the first group over here. Here there are elements such as lanthanum and actinium. After these, the elements which are present, they have been kept over here in the F block, and only the elements after the, suppose lanthanum, if we consider till mercury, over here they have given in the 5D series lanthanum to mercury. Cerium to lutetium, which is present after lanthanum, is directly taken in the first F row. Okay, similarly the after 5D, the 6D which is present, if we try to look at this format, see, this is the D, and here there are 4 rows. Okay, this is 3D, this is 4D, this is 5D, and this is 6D. They are saying that in case of elements belonging to third group, so this is the third group, here comes lanthanum and here comes actinium. After lanthanum, the elements which are present, okay, which includes cerium till lutetium after lanthanum, that is kept in this orbital which is present below the D orbital. So over here the elements after lanthanum are filled up. Similarly, after actinium, the elements are filled up over here. That's why they are just trying to show us from where the 4f orbital which is there has been filled up. Later on we will see how each of the series of the 3D is filled up and which elements are present. The names which are their transition metals and inner transition metals are used to refer to the elements of D and F block respectively. So for D block we use transition metals, and for F block we use inner transition, because they have been taken from transition, so therefore they are inner transition. Later on there are mainly 3 series of the transition metals. We basically saw here it was the D block. Okay, in the D block, the first row which is there, it is known as 3D. Similarly there is 4D, then there is 5D, and last there is 6D. Now in 3D, the first element which is there is scandium up till zinc, scandium to zinc. In 4D there is yttrium to cadmium. Okay, in 4D it starts from yttrium to cadmium. Yttrium atomic number 39 till cadmium. Next is in 5D series, it is from lanthanum to Hg, that is mercury. Okay, we remove this because this is involved in the 4f orbital. The fourth, that is the 6D, begins with actinium and is still incomplete. Okay, all the elements of the last row is not known. The 2 series of the inner transition metal, that is which is present below all of this,
It's the 4f and 5f. 4f is known as lanthanoid and 5f is known as actinoid. Okay, so this was basic thing about transition elements. Now we'll see how transition elements are defined. They are defined as the one which has incompletely filled the orbital in its ground state or in its common oxidation state. It basically tells us that, suppose we consider the electronic configuration which is given to us. First we take scandium. Okay, it is 3d 4s. Okay, here 3d 2 and 4s 1. This is the electronic configuration. Before that we write an element which completes its configuration just before scandium. Whichever element has fulfilled orbital, that is the noble element that we are going to write. After that, see 3d1 4s2, that's the electronic configuration. Similarly 3d2 4s2. So they have one unpaired electron over here, because in d orbital only one electron has been filled. The orbital contains 5 orbitals, right, and only one is filled, so this is unpaired. Okay, similarly over here which is there, even though we can see that all the electrons have been paired up, but they have also said that in the common oxidation state. So titanium in its common oxidation state, either Ti2 plus, okay, it won't have all these 2 electrons, then too we find it's paired up. Otherwise we can find out in the other oxidation state of titanium, Ti3 plus. Over here we find there is unpaired electron. So when there is unpaired electron, in that case it exhibits a transition metal property. Here also unpaired electron, here it also present. But zinc which is there, it does not exhibit that property, because Zn2 plus format also we would remove these 2 electrons, then too it would have fully filled orbital. So whatever we do in Zn form or in Zn2 plus form, we cannot get an unpaired electron. So that's what has been written over here. Strictly speaking, a transition element which is there is defined as the one which has incompletely filled d orbital. So d orbital should be incompletely filled in its ground state or in its oxidation state. But zinc which is there in Zn2 plus also, that is the oxidation state format, we did not get. Ground state which is Zn format, there also we did not get. As a result, the exception over here which we need to notice is zinc. Similarly, cadmium and mercury of group 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, and hence are not regarded as transition metals. So we need to know that zinc, cadmium and mercury, they are not transition metals, and these all belong to only one group, that is group 12. So here it is group 3, okay, 4, 5, 6, 7 till 12. So this group 12, here it includes zinc, cadmium and mercury. Okay, these 3 elements about which we talked about. However, being the end members of the 3 transition series, their chemistry is also studied along with the chemistry of transition metals. So we study them together with transition metals because they are present at the end. Okay, now the presence of partly filled d or f orbitals in their atoms set the study of transition elements. Okay, after that they have written, and their compounds apart from that of the main group elements. So what they are saying is, because of such unpaired electrons, because the pairing of electron is not present, these unpaired electrons make the d and f block elements, okay, different from that of s and p block elements. Okay, so that is what they are trying to explain. After that, however, the usual theory of valence is also applicable over here. Okay, and transition elements also show this theory, which is the theory of valence, that is valence electron theory. Here also it is valid. Now they have given various precious metals which include silver, gold and platinum. So this question can be asked, precious metals. Another question is industrially important metals, which includes iron, copper and titanium. So in industries what we do is we basically copy it. So this is copper, this is iron and this is titanium. So in this method we can remember the industrially important metals. After that, they are just saying that in this unit we will see the electronic configuration, then how they occur, their general features which are present, by putting special
emphasis on the trends in their properties of the first row, that is 3D. In 3D series we are going to see all the trends which are existing and preparation and properties of some important compounds. We'll also study the electronic configuration, oxidation state, chemical reactivity of inner transition, that is F block elements. Okay, after that is the actual part which is the transition elements, that is D block. अभी यहाँ पे बोला है कि D block लार्ज मिडल सेक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके दोनों बाजू में S एंड P ब्लॉक होता है. ट्रांजिशन का मतलब होता है कि D ब्लॉक जो है वो S और P के बीच में है. तो S यहाँ पे था, यहाँ पे बीच में D ऑर्बिटल D ब्लॉक आया और बाद में यहाँ पे P था. तो D ब्लॉक को पास होके जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है. ओके, सो D ब्लॉक को इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. उसके बाद यहाँ पे D ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टिमेट एनर्जी लेवल इन देयर एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 रोज. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली अगर स्कैंडियम की बात कर रहे थे या फिर हम डायरेक्टली आयन लेते हैं थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो आयन का एटॉमिक नंबर इज़ 26. फिलिंग करते हैं 3d6 4s2. ये टेक्निक है. 6 जो है वो 3d के साथ 2 को ऑपोजिट. ऐसा नहीं करते, बेसिकली वी ट्राई टू सी हाउ मच इट्स एडिंग अप. लेकिन सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसे करके लिख सकते हैं. अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पेनल्टिमेट एनर्जी में, ये जो सबसे आउटसाइड है ये अल्टीमेट है और उसके जस्ट इनसाइड जो है ये पेनल्टिमेट है. इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं क्योंकि ये खाली है, ये फुल फिल्ड है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते. एस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन डी में और आ सकते हैं. इसलिए डी ऑर्बिटल में फिलिंग होता है, इसलिए 3D हुआ. ये 3D सीरीज़ का एलिमेंट है तो 3D सीरीज़ में फिलिंग हो रहा है डी. ओके, वैसे 4D सीरीज़ में 4D में फिलिंग होता है, वैसे 5D होता है. वैसे 6D अभी भी इनकम्प्लीट अधूरा है, अब तक इसके बारे में पता नहीं. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो है n-1 d1 to 10 ns1 to 2. इसे याद रखना. यहाँ पे n-1 जो है ये इनर डी ऑर्बिटल पेनल्टिमेट शेल की बात कर रहे थे हम लोग. यहाँ पे 4 था तो 4-1 जो था ये 3 था. ओके, 3d6 4s2, इसलिए यहाँ पे n-1d लिखा है. उसके बाद विच में है यहाँ से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच हो सकते हैं. वैसे ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं क्योंकि काफ़ी कम एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3d और ये 4s जो है इसके बीच में एनर्जी गैप इतना कम होता है, कभी कभार यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है ताकि स्टेबिलिटी मिले. ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिसमें हो रहा है, तो 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट होते हैं. सो यहाँ पे दिया है क्रोमियम और कॉपर कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इस फीचर के वजह से बना है क्योंकि काफ़ी कम एनर्जी डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. सो क्रोमियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 3d5 4s1. ओके, सॉरी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होता है, लेकिन इसका हमें पता है d5 में ज़्यादा हाफ फिल्ड होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है और इसके बजाय ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3d5 4s1. तो ये एक पहला एक्सेप्शन है जो याद रखना है. सेकेंड एक्सेप्शन जो है ये कॉपर में है. ये 3d9 4s2 होता है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है एंड वी गेट दिस 3d10 4s1 ताकि स्टेबिलिटी मिले फॉर फुली फिल्ड. तो यहाँ पे फुली फिलिंग के वजह से और यहाँ पे हाफ फिल्ड होने के वजह से. तो ये 2 रीजन्स है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की जा गई. फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है. यहाँ पे एक्सेप्शन हमें केवल मैंगनीज में नहीं, केवल क्रोमियम में दिखाया था और दूसरा था कॉपर में, बिकॉज ऑफ वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके अलावा यहाँ पे कोई और एक्सेप्शंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद यूट्रियम से लेकर कैडमियम का सीक्वेंस है और फिर थर्ड सीक्वेंस लैंथेनियम टू मर्क्यूरी है और फिर एक्टिनियम टू UUB. ओके, कॉपरनिशियम. तो उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली पैराग्राफ. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते, एक्सेप्ट फॉर अगर याद रखना भी हो तो प्लैटिनम का याद रखना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आ सकता है. उसके अलावा पलेडियम का भी याद रखना चाहिए एंड रेस्ट ऑल हो जाता है.
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये हमेशा N-1D10 NS2 होता है। यहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये लोग ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, वापस से बताया। उसके बाद डी ऑर्बिटल्स जो है ये पेरीफेरी पे होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं रादर देन S&P ऑर्बिटल। इसका मतलब हम लोग हमेशा लिखते हैं 3D 4S, ओके। और जो डी ऑर्बिटल है अगर देखें तो S ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होता है, फिर P होता है और उसके बाद डी ऑर्बिटल आता है, इसलिए डी ऑर्बिटल जो है वो पेरीफेरी की तरफ है और न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। सो इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बाकी सराउंडिंग में जो आइटम्स है उससे, रादर देन S&P ऑर्बिटल्स। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, इट्स दे आर मोर इन्फ्लुएंस बाय सराउंडिंग एज वेल एज अफेक्टिंग आइटम्स और मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आयंस को हम DN कॉन्फ़िगरेशन देते हैं और N 1 से 9 के बीच में होते हैं और उनके पास सिमिलर मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। फिर हाफ फील्ड जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वेराइटी होता है, कलर्ड आयंस फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग लाइगेंड्स के साथ, ओके। उसके बाद लाइगेंड्स के बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड्स जो है ये क्या एग्जिबिट करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस का स्पीड अप करते हैं, तो ये काम भी होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का भी दिखाते हैं और ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हॉरिजॉन्टल जो रोज है, ओके, डी 3D अगर बोले तो 3D में हॉरिजॉन्टली ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है रादर देन डाउन द ग्रुप। ऐसा जो प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी जो था ये नॉन ट्रांजिशन मतलब S या फिर P ब्लॉक में दिखाई देता था, लेकिन ऐसे लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ हमें डी ऑर्बिटल्स में दिखाई दे रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इसके बाद हम बाकी ग्रुप सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे और ट्रेंड्स भी देखेंगे। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटालिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। मेटालिक मतलब मेटल्स के जैसे, उसमें आता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी मतलब वायर्स बनाने का, मेलिएबिलिटी मतलब बेंड होने की टेंडेंसी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है, ओके। फिर मेटालिक लस्टर जो है शाइन दिखाता है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज। इनके पास एक नहीं एक से ज़्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये याद रखना है, एक से ज़्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैग्नीज भी आया है और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन बाकी सबका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया है। ये जो पूरा रो है यहाँ पे सब HC पे दिखाते हैं और ब्रैकेट में BCC, ओके। उसके बाद ये जो दो है यहाँ पे सारे BCC दिखाते हैं, फिर ये रो है यहाँ पे सारे HCP दिखाते हैं, एंड लास्ट ये तीन जो है ये सारे CCP दिखाते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज की जो बात की थी, अगर हम सेपरेट देखें तो मैंगनीज की बात जो की थी, जिंक की बात जो की थी, कैडमियम की बात की थी और मर्क्यूरी, इनको X क्यों लिखा है, क्योंकि एक से ज़्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर है, बाकी के पास तो एक ही टाइप का है। तो यहाँ पे लर्न करना है तो हाई बोलो, हाई CCP, ओके। तो ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट टू वो एक ही है, नेक्स्ट टू, फिर उसके दो और लास्ट में तीन साथ में, तो ये मेटालिक स्ट्रक्चर का टेबल याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मेल्टिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी। बेसिकली हम ग्राफ से ही देखें तो दो एक्सेप्शंस हैं जो बेंड हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है, हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। और जो पता चल रहा है यहाँ पे कि ट्रेंड रेगुलर नहीं है, काफ़ी ऊपर नीचे से ट्रेंड है। तो अभी पैराग्राफ वर्जन देखें कि क्या कह रहे हैं बेसिकली, ताकि पता चले डायग्राम में जो हमने समझा है वो करेक्ट है या नहीं। ट्रांजिशन मेटल्स जो है, एक्सेप्शन पता ही है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये काफ़ी हार्ड होते हैं और लो वॉलेटिलिटी। हमेशा याद रखना है वॉलेटिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर वॉलेटिलिटी लो है उसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है हाई बॉइलिंग पॉइंट या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके।
इस यहाँ पे वही लिखा है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। ये फिगर से क्या पता चल रहा है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स आर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है काफ़ी लिटिल एनर्जी डिफरेंस होता है n-1d में और ns इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए इन दोनों ऑर्बिटल्स के काफ़ी क्लोज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ओके, तो फिर हम कह सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बढ़ जाती है। अगर मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, और एक और आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो भी इंक्रीज होता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम है एट D5। एक्सेप्शंस हमने दो देखे थे, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, वही बता रहे हैं। ओके, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये अब भी देखा था हमने, विच इज़ ऑल्सो सीन, वो अगले फिगर में दिखाया जाएगा। मैक्सिमा एट द मिडल इंडिकेट्स दैट ओनली दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर d ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होता है, सपोज हम ये देखें d ऑर्बिटल, ओके, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। यहाँ पे जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रखेगा, डेल्टा H एटमाइजेशन। लेकिन हम अगर D1 देखें तो यहाँ पे केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। फिर D2 पे चले तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर D3 पे चले तो वैसे ही इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन D5 के बाद अगर हम D6 में जाए तभी क्या होगा, यहाँ पे एक पेयर अप हुआ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है अनपेयर्ड कैसा हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए कुछ, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, थोड़ा डिप दिखाई देता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही ग्राफ दिखाई देता है हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ग्रेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अब भी देखा था, ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए। मेटल्स जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है वो नोबल होते हैं। नोबल मतलब वो रिएक्ट नहीं करते, वो अपने रिएक्शन में ऐसे ही सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह खड़े रहते हैं, ओके। उसके बाद एक और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट सीरीज। मतलब हमें पता है 3D सीरीज होता है, 4D होता है, 5D सीरीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D से ज़्यादा है और 4D सीरीज का भी 3D से ज़्यादा है, ऐसे कह रहे हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू मेटल मेटल बॉन्डिंग। हेवियर एलिमेंट्स में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, ओके। उसके बाद ये ग्राफ जो है ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। इसके बाद जो हमें बताया है कि इन जनरल आयंस ऑफ सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव। अगर देखें तो टाइटेनियम Ti2+, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेम चार्ज है, ओके, और गिवन सीरीज, तो ये सीरीज है, इनका रेडियस डिक्रीज हो रहा है। मतलब टाइटेनियम का रेडियस ज़्यादा बढ़ा है, फिर क्रोमियम, फिर तो डिक्रीज हो रहा है रेडियस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ओके, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव। तो यहाँ पे अगर टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D2 होता है, 4s2। लेकिन अगर Ti2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए तो 3D2, ओके। ये वैनेडियम 3D3, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3D3। वैसे ही क्रोमियम में 3D4, मैंगनीज में वापस से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंगनीज का एक्सेप्शन था 3D5, 4s1। अगर 2+ है तो यहाँ पे 3D4 ही होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमेशा नया इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, तो 2 से 3 से 4 इंक्रीज हो रहा है, राइट, डी ऑर्बिटल में।
लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से ये नहीं हो रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग काफ़ी कम होता है, मतलब वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर सपोज न्यूक्लियस कंसिडर करें और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है नया डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे जो शील्डिंग होता है वो पुअर है, इसलिए नेट न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, और रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। ये सेम ट्रेंड हमें एटॉमिक रेडियाई में भी दिखाई देता है, लेकिन विद इन द सीरीज ये वेरिएशन काफ़ी कम होता है। अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो एटॉमिक साइज में होता है जब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम वन सीरीज टू अनदर। ओके, 3D 4D और 5D को हम अगर कंपेयर करके देखें ग्राफिकल फॉर्मेट में, और इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है कि 4f ऑर्बिटल में जो फिलिंग होती है वो 5D के पहले होती है इन केस ऑफ लैंथेनॉइड जो सीरीज होती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर 5D सीरीज की बात करें तो यहाँ पे पहले हम 4f भरते हैं और उसके बाद 5D, तो f की शील्डिंग इफेक्ट d से भी और भी कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट की स्ट्रेंथ देखें तो s ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर p, फिर d और लास्ट में f, इसलिए यहाँ पे साइज़ जो है इंक्रीज होने के बजाय सेम रह जाती है। लेफ़्ट टू राइट साइज़ जो है इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल वो इंक्रीज इज कंपेंसेटेड विद द प्रोग्रेसिव डिक्रीज। इसे ही हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दैट इज फिलिंग ऑफ 4f before 5D orbital results in regular decrease in atomic radii, which essentially compensates for the expected increase in the atomic size with increasing number. Okay, उसके बाद net result of lanthanide contraction is that second and third 3D series exhibit similar radii. Second मतलब हमेशा याद रखना है 4D series, and third series मतलब 5D series, तो इनके बीच में जो radii है काफ़ी similar होते हैं। इसके वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखाई देते हैं। तो ये हुआ हमारा 4D सीरीज़, और ये जो है 5D, तो इनके रेडियस में काफ़ी अंतर होता है, सिमिलरिटीज़ होती है, इसलिए ये लोग काफ़ी चिपके हुए बनाए हैं। अगर हम 3D देखें तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम ये तीन पहले एलिमेंट्स देखें, ओके, फिर यहाँ पे बीच में अगर देखें थोड़ा सा और बाद में यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Z इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा है रादर देन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन अभी केवल थोड़े ही भर चुके हैं, ज़्यादा नहीं है, एक हुआ फिर दो हुआ, तो ज़्यादा रिपल्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, Z इफेक्टिव ज़्यादा है, इसलिए स्टार्टिंग में साइज़ घट रहा है, बाद में इक्वल साइज़ है क्योंकि Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा भर गए कि Z इफेक्टिव से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज़ बढ़ गया है। ओके, सो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेंड क्यों हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसका रीज़न ये इसके अलावा यहाँ पे बताया कि फैक्टर जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है is somewhat similar to that observed in ordinary transition series and is attributed to similar cause, that is imperfect shielding of one। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 4f इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और f इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है, वो लेकिन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। उसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जो हो रहा है उसके साथ डिक्रीज भी हो रहा है। ओके, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये डिक्रीज मेटालिक रेडियाई में इंक्रीज विद एटॉमिक मास, लेकिन मास बढ़ता रहता है। ओके, डेंसिटी का यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है कि डेंसिटी टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक इंक्रीज होता है, और बाद में डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो कम होता है दैन डेंसिटी ऑफ जिंक। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में पता चल जाएगा बाद में, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा होता है। ये टैबुलर फॉर्मेट में जो इम्पोर्टेंट है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है। बेसिकली इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड और थर्ड कैसे निकालते हैं, डेंसिटी का ट्रेंड इम्पोर्टेंट होता है रादर दैन दैट मेटालिक रेडियाई और सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बेसिकली पता है लेफ़्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज होता है, तो वही हो रहा है, बस रेगुलर नहीं है ट्रेंड, बाकी कुछ नहीं। उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे।